I am delighted to stand on the platform and address you all. हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, जी हाँ, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ चारों ओर उथल-पुथल है, संघर्ष, संदेह, विध्वंस और संकट हर दिशा से घिर चुके हैं। युद्ध की आहट अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर मनुष्य के अंतर्मन में गूंज रही है। कभी जिस मानवता ने शांति और समृद्धि का सपना देखा, आज वही आत्मविनाश की ओर बढ़ रही है। चारों ओर असमानता है, कहीं भूख तो कहीं अति, कहीं अंधकार तो कहीं दिखावे की चकाचौंध। राजनीति अब केवल सेवा नहीं रहा, बल्कि आत्म प्रशंसा और स्वार्थ का खेल बन चुका है। और ऐसे समय में हमें प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की चेतना की आवश्यकता है। We are living in an age of relentless turmoil. The world stands on the edge, surrounded by the deafening drums of war and the looming shadow of weapons of mass destruction. Humanity, once driven by the hunger for peace and prosperity, is now being pushed towards self-inflicted destruction. Millions across the globe struggle each day without the dignity of basic necessities. No clean water to drink, no medicine to heal, no classroom to learn in. And amidst this, our moral compass lies corroded, rusted from neglect, twisted by greed. Leadership, once rooted in wisdom and responsibility, has been reduced to selfish megalomania. Loud speeches, but no direction. Global summits, but no soul. Ironically, we are not just dying from poverty, we are perishing from plenty. From overuse, misuse, and blind consumption of what we call comforts. Substance abuse is not an escape anymore. It has become a luxury that sells disease. This is not just a crisis of economy or ecology, it's a crisis of consciousness. And in such times, the eternal voice of Lord Shri Krishna becomes not just relevant, but essential. His teachings in Bhagavad Gita are not voices to be worshipped on altar. They are roadmaps to navigate inner chaos, moral confusion, and external collapse. When Krishna says, Yogaste Kuru Karmani, it means remain balanced and perform your duty. He does not speak to just Arjun, but to every human caught in doubt, despair, or delusion. Krishna's wisdom cuts through darkness, not with destruction, but with discernment, not with ideology, but with clarity of thoughts and compassion in action. In these tumultuous hours of history, we don't need new technologies or treaties as much as we need Krishna's timeless truths, a revival of dharma, a reawakening of conscience, and a return to inner equilibrium. This is what Krishna offers, and this is what the world desperately needs. कभी सोचा है हम कहां से चले थे, और कहां आ पहुंचे हैं। जहां मनुष्य ने आकाश को छू लिया है, पर आत्मा की जमीन दरकने लगी है। हमने रोबोट बना लिए हैं, लेकिन इंसानियत खो दी है। हमने बोलना सीख लिया, पर हम सुनना भूल गए। आज का समाज तेज है, बहुत तेज, लेकिन इतनी गति में भी शांति की खोज अब तक अधूरी है। We live in cities that never sleep, but souls that rarely wake. A world buzzing with information, but aching in wisdom. Children today grow up in apartments, not playgrounds. Families dine together, but eat alone. Phones in hand, silence on the table. We know how to reach Mars, but not
how to reach our own hearts in such a restless time. Who will guide us back home? That's when Krishna enters. कृष्ण एक चरित्र नहीं, एक शाश्वत चेतना है। वह केवल गोपियों के साथ नृत्य करने वाले नहीं, बल्कि अर्जुन के मन के भ्रम को मिटाने वाले हैं। उनका हर कदम, उनकी बांसुरी की धुन, उनकी मुस्कान एक संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह श्लोक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बच्चे की परीक्षा में, माता पिता की अपेक्षाओं में और समाज के संघर्षों में। Krishna is not just a god in a storybook. He is the echo of balance in a chaotic world. He teaches love without attachment, action without expectation, strength without violence. When we see injustice in our homes, competition in friendships, loneliness in the most crowded rooms, we are standing at our own Kurukshetra. And just like Arjun, we tremble, we question, we fall. And just like Arjun, we need a Krishna. आज जब प्रेम दिखावे में बदल गया है, जब धर्म राजनीति में बदल गया है, जब शिक्षा केवल अंकों तक सीमित रह गई है, तब कृष्ण की गीता, कृष्ण की दृष्टि और कृष्ण की दृष्टि फिर से जरूरी है। उनकी बांसुरी की धुन कोई संगीत नहीं, एक आत्मा को जगाने वाली पुकार है। There is a line that keeps returning to us, मन रे तू काहे ना धीर धरे। which reflects why does your heart tremble, oh mind? Because we have forgotten to listen within. Krishna doesn't command, he converses. He doesn't impose, he inspires. He doesn't enslave, he liberates. तो आज की यह प्रस्तुति कोई पौराणिक कथा नहीं, एक दर्पण है जो हमें अपने समय के कृष्ण को दिखाने आई है। हर घटना, हर संवाद कहीं ना कहीं हमारे समाज, परिवार और भीतर के मन से जुड़ा हुआ है। यह मंच केवल अभिनय का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का क्षेत्र बन रहा है। So as we begin, let us not just listen to Krishna. Let us feel him, reflect him, reclaim him, not as an idol of the past, but as a compass for today. Because Krishna isn't gone, he just waits for you to turn inward and hear the flute again. पृथ्वीलोक पर पाप, अधर्म व्यापक हो रहा है। कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे पापी धर्म का नाश कर रहे हैं। इनसे व्यथित होके पृथ्वी, इंद्र आदि सभी देवगण मिलकर परमपिता ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित होते हैं। हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी के बढ़ते पाप के निवारण का कोई उपाय बताएं। पृथ्वी सहित देवलोक भी भयभीत हैं। हे आगंतुकों, इसका निवारण तो स्वयं श्री हरि नारायण ही कर सकते हैं। वे ही समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। इसके पश्चात ब्रह्मदेव भी सभी देवताओं के आग्रह पर श्री हरि से विनती करने उनके धाम वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए वैकुंठ धाम के दर्शन करते हैं। प्रभु, पृथ्वी पर धर्म संकट में है प्रभु, रक्षा करे प्रभु। हे जगत के पालनहार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे नारायण, 16 कलाओं सहित आपके अष्टम अवतार लेने का समय आ गया है प्रभु।
सभी निश्चिंत रहें। शीघ्र ही मैं अपनी 16 कलाओं सहित मथुरा में देवकी एवं वसुदेव जी के 8वीं संतान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा। बात द्वापर युग की है, जहां पृथ्वी पर मथुरा नगरी में उग्रसेन राजा थे। उनके पुत्र का नाम कंस था। देवकी उग्रसेन के भाई की पुत्री थी। देवकी के विवाह की जिम्मेदारी भी उग्रसेन की ही थी। विवाह यदुवंशी वसुदेव जी के साथ तय हुआ, जो कंस के परम मित्र भी थे। कंस ने बड़ी ही प्रसन्नता से अपनी बहन का विवाह संपन्न कराया। देवकी और वसुदेव जी कंस एवं सभी बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं। आइए इस दृश्य को देखते हैं। सौभाग्यवती भव। मन तो नहीं करता तुम्हें विदा करने का, परंतु बेटी को तो ससुराल जाना ही पड़ता है। भैया, मुझे यहाँ की बहुत याद आएगी। जाओ बहन, ससुराल में सुख शांति से रहना। वसुदेव, मेरी लाडली बहन का ध्यान रखना। हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि देवकी प्रसन्न ही रहे। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है, दोनों खुश रहो। आओ, नगरी के बाहर तक मैं साथ चलता हूँ। कंस बड़ा प्रसन्न हो रहा है देवकी का विवाह करके, परंतु इसी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण होगी। कंस, तेरी मृत्यु का कारण होगी, तेरी मृत्यु का कारण होगी। मेरी मृत्यु कोई नहीं कर सकता। मैं महाप्रतापी कंस हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये अवश्य ही उस कपटी विष्णु का कोई मायाजाल है, परंतु मैं भी कंस हूं। मैं देवकी का ही वध कर दूंगा। मेरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं कंस, ऐसा अनर्थ ना करो। तुम महाप्रतापी हो। कंस, तुम्हें ऐसी कायरता शोभा नहीं देती। क्या तुमने मुझे कायर कहा? नहीं नहीं कंस, ऐसा नहीं है। मेरा अर्थ वैसा नहीं था, परंतु एक अबला स्त्री की हत्या क्या तुम जैसे वीर को शोभा देती है? बात तो ठीक है, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यदि तुम देवकी को नहीं मारते हो कंस, तो मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी सभी संतानें तुम्हें ही सौंप दूंगा कंस, तुम्हें ही सौंप दूंगा। यदि ऐसा ही है तो सिपाहियों, बंदी बना लो इन्हें। बेड़ियों में बांध के काट कोठरी में डाल दो, जहां सूर्य की किरण भी ना पहुंच पाए। अब देखता हूं कैसे मेरी मृत्यु होती है। देवकी और वसुदेव जी बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कारागृह में उनका जीवन बड़ी ही कठिनाइयों में व्यतीत हो रहा है। सभी 7 संतानों कंस ने बड़ी ही निर्ममता से मार डाला है। 8वीं संतान अर्थात भगवान श्री हरि के अवतरित होने का समय आ गया है। सभी देव, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी देवगण श्री नारायण भगवान की
गर्भ स्तुति करते हैं। प्रभु श्री हरि इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। जैसे ही वसुदेव जी 8वीं संतान को उठाकर कंस को देने जा रहे होते हैं, तब अपने आप इनकी बेड़ियां खुल जाती हैं। द्वारपाल सो जाते हैं। कारागृह के सभी द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं और भयंकर वर्षा, तूफान आना शुरू हो जाता है। मथुरा से जाते समय यमुना जी भी अपने प्रबल वेग से बह रही थी। अहो भाग्य मेरी, जुग जुग राज करो श्री गोपाल। आज आपके चरण छूकर मैं धन्य हो गई। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना जी से एक रास्ता स्वतः ही बन जाता है। उस रास्ते से होकर वसुदेव जी बालक को गोकुल में नंदराय जी के यहाँ छोड़ के आते हैं। इसके पश्चात गोकुल में हर्षोल्लास से नंदराय जी के घर बधाई उत्सव हो रहा है। चहुओर खुशहाली हो रही है। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। गंधर्व अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं। सभी देवता अपना वेश बदलकर कैसे भी करके छोटे गोपाल के दर्शन करना चाहते हैं। आइए देखते हैं गोकुल में नंदराय जी के और यशोदा जी के यहाँ बधाई उत्सव। बधाई के उपरांत गर्ग मुनि भी वहां आते हैं एवं नंदराय जी के बालक का नामकरण होता है। आइए इस दृश्य को देखते हैं। प्रणाम मुनिवर, अपना आशीर्वाद इस लल्ला को दीजिए और इसका नामकरण भी कर दीजिए। हे नंदराय जी, वृषभ लग्न और रोहिणी नक्षत्र के दुर्लभ योग में जन्म लेने वाला ये शिशु बहुत ही दिव्य है। मुझे आपके बालक के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात श्री राधिकापति भगवान हरि की भांति छवि दिखाई देती है। सो हम इनका नाम रखेंगे श्री कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, देखो देखो कितना सुंदर नाम है यशोदा। यशोदा, हमारे लल्ला का नाम कृष्ण है। अरे अरे ग्वालो, अरे गोपियों, सुनते हो क्या? मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है। कृष्ण नाम है मेरे पुत्र का नाम, कृष्ण है। अरे नंदराय जी, कितना सुंदर नाम है। हाँ, कितना सुंदर नाम है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चरणन में
घुट बन डोले रे पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेली यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेली यशोदा मैया तेरो ललना वा तो झूले पलना तेरो ललना री मैया झूले पलना जुग जुग जीवेली यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेली यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना जुग जुग जीवेली यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेली यशोदा मैया तेरो ललना अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल भयो नंद के आनंद भयो मुझे आवाज नहीं आई नंद के आनंद भयो रास्ता बन लगे तब किसी कृष्ण का जन्म होता है चेतना को जगाने के लिए टुडे millions are born in the presence of poverty, violence and broken homes, but Krishna's birth reminds us divinity doesn't wait for a perfect condition. श्री कृष्ण बताते हैं जेल हो या जीवन की जेल जैसी परिस्थितियां वहां भी एक किरण जन्म ले सकती है. Each time you feel trapped, remember कृष्ण तभी जन्मते हैं जब दुनिया अंधी हो जाए. आज की सच्चाई भारत में 30 मिलियन बच्चे ऐसे इलाकों में पैदा होते हैं जहां जिंदगी जेल जैसी है, बिना शिक्षा, बिना सुरक्षा. जय श्री कृष्ण. पवन सर, एक बार नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हम हमारा प्रयास कर रहे हैं, आप अपना प्रयास हमें करके बताइएगा. अगर वही कान्हा से आपका प्यार है, वही राधा को आप उसी रूप से पुकारते हैं, तो एक बार जोर से कान्हा का नाम लेके बोलो जय कन्हैया लाल की. चलिए पवन सर शुरू कीजिए. अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भयो जय कन्हैया लाल की अरे यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पूरे गोकुल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल
देखिए ना वाद्य किराए का है, ना गीत किराए का है, ना व्यक्ति किराए के हैं। ये सब घर परिवार में सब एक साथ बैठे हैं तो आवाज भी किराए जैसी नहीं निकली चाहिए। एक बार फिर से नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बचा के रखियो। ठीक है, तुम कहती हो तो छुपा देती हूँ कहीं। अरे बूढ़ी, वहाँ मत छुपा, सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, कहीं से भी ढूंढ लेंगे। बात तो सही है। सखी ऐसा कर, माखन को ऊपर छीके पे टांग दे। इतना ऊपर कैसे ही चढ़ेगा? हाँ हाँ, इतना ऊपर तो कैसे ही पहुँचेगा। ठीक है, तुम लोगों की बात मान लेती हूँ, परंतु डर लग रहा है। देखो सखी, कहीं वो नटखट मंडली आसपास तो नहीं? हाँ हाँ, देख लेती हूँ। कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। रख दे बहन। चलो चलो, देर हो रही है, पंडित में भी समय लगेगा। चलो 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 चलो, हाँ हाँ चलो चलो। अरे रुको रुको, तनिक और रुको। अरे श्रीदामा, मेरे ऊपर मत पड़ो। अरे भाई, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तनिक रुको तो, थोड़ा दूर जाने दो। हाँ हाँ, कृष्ण श्रीदामा की शीघ्रता के कारण पिछली बार भी बड़ी मार पड़ी थी। आहा, कितना स्वादिष्ट माखन है। खा लेता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। भूखे कहीं के माखन समझ के मेरा हाथ ही चबा डाला।
हमारा माखन? अरे माखन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे बाप रे, माखन तो ऊपर टंगा है। दाऊ भैया, आप तो ऊंचे करके हो, आप प्रयास करो। बड़ी चंद है काकी, ना ऊपर छीके पे टांगा है। काना, तुम मेरे कंधे पर बैठो, फिर प्रयास करो। अरे मोरी मैया, सब तहस नहस कर डाला। रुक जा, अभी मजा चखाती हूँ। रुक जा। भाग कहाँ रहे हो? काकी मेरा कान छोड़ो। अब बोलो। यशोदा, ओ यशोदा, अरे सुनती हो क्या यशोदा? ओ यशोदा। हरी माखन
कृष्ण और उनके मित्रों की माखन चोरी और नटखट लीलाओं से तंग आकर माता यशोदा ने उनको उनके सखाओं के साथ में हाथ में लकुटी और कमरी देकर बछड़े चराने भेज दिया। वहां बांसुरी बजाने वाले कृष्ण बछड़े भी चरा रहे, बांसुरी भी बजा रहे। चले देखते हैं वहां क्या होता है। सवेरे सवेरे बछड़े चराने भेज देती है मैया, सोने भी नहीं देती। ऊपर से इन बछड़ों ने नाक में दम कर रखा है, भूख भी लग रही है, क्या करूं? कोई सखा दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा करता हूँ, कान्हा को आवाज लगाता हूँ। सब उसी के चमचे उसके आसपास घूम रहे होंगे। कान्हा, ओ कान्हा, अरे कान्हा बहुत भूख लगी है, कहाँ हो? हाँ हाँ श्रीदामा, मुझे तो पता ही था तुम्हें भूख लगेगी। आ जाओ भोजन करते हैं। हाँ हाँ सखाओ, आ जाओ, तुम भी भोजन कर लो। अरे ओ तो सन, मधु, ओ मधु, अरे सुबाला, पाचू, मांगू, आओ शीघ्र आओ, सब आ जाओ, भोजन करते हैं। अरे सब इधर उधर मत बैठो, घेरा बनाकर बैठो। खीर की सुगंध आ रही है। सुबाला, पोटली खोलो तुम्हारी। चल हट, दूर हट। ये खीर तो मेरी मैया ने बड़े चाव से मेरे लिए और कृष्ण के लिए बांधी है। क्यों? कृष्ण को ही क्यों, मुझे भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही मेरा परम मित्र है। कृष्ण तो हमारा भी मित्र है। तुम्हारी शीघ्रता तो हर बार हमें पिटवाती है। कृष्ण ही हमें हर बार संकटों से बचाते हैं। और यदि मैं कृष्ण को खीर खिलाऊंगा तो कृष्ण भी यशोदा मैया के हाथ का स्वादिष्ट माखन खिलाएंगे। यदि ऐसा ही है तो मैं भी तुम्हें माखन खिलाऊंगा। ये लो श्री रामा, लो, थोड़ी हमारे लिए भी बचा देना। हाँ, मुझे भी खानी है खीर। हाँ हाँ, मुझे भी खानी है खीर। मैं भी खाऊंगा। शीघ्र दो, मुंह में पानी आ रहा है। सबको दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? एक ही निवाले में चट कर जाता हूँ। भैया रे, कैसी खीर है, एकदम खारी ठुस। अभी मजा चखाता हूँ। रुको रुको, कहाँ भागते हो? अरे मैया रे, ये कैसा बछड़ा है? कन्हैया, ओ कन्हैया, रोशन, मांगू, घीसा, पाचू, सुबाला, पाचू। अरे रुको श्रीदामा, ये देखो बड़ा विचित्र बछड़ा है। मुझे तो डर लग रहा है कृष्ण। देखो इसके कितने बड़े सींग हैं। अरे बाप रे, बड़ा ही भयानक है। के तो दांत भी बाहर निकले हुए हैं। चलो चलो कृष्ण, यहाँ से चलो। अरे सखा, डरो मत, मुझे देखने दो। कृष्ण, मुझे तो ये कंस का भेजा हुआ कोई भयानक असुर लगता है। हाँ हाँ दाऊ भैया, लगता तो यही है। असुरी तो है, असुरों में वैसे ही बुद्धि नहीं होती। चलो इसकी खिंचाई करते हैं। अरे तेरी मैया का नाम ही बता दे। तेरा नाम क्या है रे? हो दाऊ भैया, ये बछड़ा तो अपने झुंड का नहीं लगता।
हाँ कन्हैया, अपने वाले तो सारे बछड़े बात करते हैं। अरे सखाओ, डरो मत, ये तो कोई बछड़ा ही नहीं है, बात ही नहीं करता, बस करे जा रहा है। इसका मतलब ये गधा है। पर इसके तो सींग है। तो फिर ये सींग वाला गधा है। मैं गधा नहीं हूँ, मैं तो प्यारा सा बछड़ा हूँ। देखो बछड़े की जैसे चल के दिखाता हूँ। बछड़े की जैसे शरीर आता हूँ। प्यारे से बछड़े के इतने बड़े सींग। वो तो बचपन से ही है। बचपन से ही तो मूर्ख गधे हो, बछड़े कभी बात नहीं करते। मूर्ख हो, तुमने मेरी हंसी उड़ाई, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम वत्सासुर है। मैं महाराज कंस की आज्ञा से तुम्हें मारने आया हूँ। बताओ तुम में से कृष्ण कौन है? अरे वत्सासुर, कायर, मैंने तो तुझे पहचान ही लिया था। पहचान लिया तो सुनो, मैं ही तुम्हारा काल हूँ। लगता है तुम्हें भी तुम्हारे भाई बगासुर के पास भेजना पड़ेगा। आ जाओ। आओ, दो भैया, इसकी पूंछ पकड़ के पटक दो, मैं सींग मरोड़ के इसका मुंह तोड़ता हूँ। बालकृष्ण ने अभी अभी वत्सासुर नामक बड़े भयानक राक्षस का वध किया है, तो हर्षोल्लास तो बनता है। आप लोगों का साथ चाहिएगा बस मुझे। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ओ सखी ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, सखी ऐसो चटक मटक सो
इंद्र का क्रोध बरस पड़ा और गांव डूबने लगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, वो भी एक उंगली पर और बिना किसी घमंड के। आज हम भी इंद्र की पूजा करते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन जब बाढ़ आती है तब कोई गोवर्धन नहीं उठाता, तब कोई भी गोवर्धन नहीं उठाता। उन्होंने हमें सिखाया, किसने? श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि प्रकृति को पूजा नहीं, सुरक्षा चाहिए। धर्म का अर्थ केवल यज्ञ नहीं, जन की रक्षा भी है, जन की रक्षा भी है। Krishna's act wasn't just a miracle, it was civil disobedience against the blind ritualism. And in today's climate crisis, floods and heat waves, we need leaders who lift mountains, not who manipulate minds. गोवर्धन उठाना आज भी उतना ही जरूरी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज उसे ज्ञान और साहस से उठाना होगा। आज की सच्चाई, भारत के 170 से अधिक जिले, जी हाँ, भारत के 170 से अधिक जिले आज भी बाढ़ और सूखे की दोहरी मार झेल रहे हैं। तो एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अंगराय जी सहित सभी ग्वाल मिलकर यज्ञशाला में देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इंद्र के खुश होने से मेघ वृष्टि होती है। चलिए यज्ञशाला की तरफ चलते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। थोड़ा इधर आओ भाई, मेरी मदद करो। हाँ आता हूँ। अरे ये सामान तो बहुत भारी है। अरे संभाल के लेके चलो भाई। अरे भाई, सभी संभाल के सामान उठाओ थोड़ा। हाँ, इधर उधर हुआ ना तो इंद्र कुपित हो जाएंगे। अरे नंदराय जी, अभी तो बहुत सारा सामान बचा है। अरे कृष्ण, अरे लला कहाँ चले? तनिक इधर आओ तो, पूजा के कार्य में थोड़ा हाथ बटाओ। अरे मोरी मैया, इतना भारी सामान उठाना पड़ेगा, आज तो बुरे फंसे। हाँ, चलो उठाओ, जोर लगा के। जोर लगा के। अरे क्या किया तुमने कृष्ण? अरे बाबा, फलों की टोकरी तो है, क्या हुआ? अरे कान्हा, लला ये इंद्र की पूजा के लिए था। ये इंद्र कौन है बाबा? हम हर वर्ष उनकी पूजा क्यों करते हैं? अरे पुत्र, इंद्र देवताओं के राजा है। यदि उनकी पूजा करते हैं तो वे प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। यदि नहीं करते तो? नहीं लला, ऐसा ना बोलो। यदि उनकी पूजा नहीं करते तो देवराज इंद्र क्रोधित हो जाते हैं। क्या ही हो जाएगा यदि वो क्रोधित हो गए तो? कृष्ण, यदि इंद्र क्रोधित हो जाएंगे तो या तो भयंकर अकाल पड़ेगा या भारी तूफान से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। घास फूस का एक तिनका भी नहीं रहेगा, ना गायों के लिए घास रहेगा, ना अन्न, ना दूध, ना दही, कुछ नहीं बचेगा।
ये कोई कालिया नाग नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। ये देवराज इंद्र है। नंदराय जी समझाइए अपने लल्ला को। काका, यदि दूध या दही के लिए किसी की पूजा करनी है तो गौ माता की कीजिए, घास के लिए पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए। हाँ काका, इन सब के लिए इंद्र की पूजा क्यों करनी? देखो बच्चों, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हर वर्ष इस प्रथा को करना ही पड़ता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम कंस को कर देते हैं। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर क्या काका, क्या हमें आंखें बंद करके सभी प्रथाओं को मान लेना चाहिए? तुम ही बताओ कृष्ण, क्या करें? हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति गौ माता है। वे अपने भोजन पर निर्भर करती है इस गोवर्धन जी पे, इसलिए हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, ना कि किसी गुस्सेल इंद्र की। नंदराय जी, मैं कृष्ण की बात से सहमत हूँ। मेरे प्यारे ग्वालों, मैं भी सहमत हूँ और हम आज ही से इस दिव्य पर्वत की पूजा करेंगे। हाँ नंदराय जी, यही हमारा जीवन है। इसके बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है। मित्रों, बात में दम है। हमारा जीवन इंद्र पर नहीं, गोवर्धन पर निर्भर करता है। कृष्ण ठीक ही कहता है। हाँ हाँ, ठीक ही कहता है। हाँ हाँ, कृष्ण ठीक ही कहता है। तो हम सभी अपना चढ़ावा लेंगे और अभी आज ही गोवर्धन की पूजा करेंगे। चलिए आइए, आप हम सब मिलकर श्री गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। आप लोगों का साथ चाहिएगा। तालियों के साथ।
आखिरकार श्री कृष्ण ने सभी ग्वालों को गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए मना ही लिया। इधर श्री कृष्ण जी के कहने से सभी ग्वाल गोवर्धन जी की पूजा में मगन हैं और उधर इंद्रलोक में इंद्र आग बबूला हो रहे हैं। देखते हैं श्री कृष्ण इंद्र का अहंकार कैसे दूर करते हैं। ग्वालों, तुम्हारा इतना दुस्साहस, अब तुम्हें इंद्र के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। बचाओ बचाओ बचाओ, वो इंद्र के प्रकोप से बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। नंदराय जी, आपने इंद्र को कुपित कर दिया। अभी भी देर नहीं हुई है, हमें इंद्र से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें कृष्ण पे पूरा भरोसा है। वृंदावन की रक्षा के लिए वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा।
राधे राधे रे तो चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे ओ राधे 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 रे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रे तो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रे तो चले आएंगे रासलीला जब प्रेम पर कोई अधिकार नहीं होता, चांदनी रात यमुना किनारे बही धुन, राधा और गोपियों संग कृष्ण का रास। ये कोई नाच गाना नहीं था, ये एक चेतना थी जहाँ प्रेम शुद्ध था, बिना स्वार्थ, बिना अधिकार। रास हमें सिखाता है प्रेम को बांधो मत, जियो जहाँ जाति, धर्म या सामाजिक बंधन नहीं, बस आत्मा और आत्मा का संग है। आजकल के रिश्तों को फिर से उसी शुद्ध प्रेम की जरूरत है। कृष्ण का रास एक नृत्य ही नहीं, प्रेम का परम सत्य था। आज की सच्चाई, 3 में से 1 भारतीय महिलाएं किसी न किसी दमन या हिंसा का शिकार होती है। जय श्री कृष्ण। भादो मास चल रहा है, झूले का मौसम है। ऐसे ही एक दिन ठाकुर जी राधा रानी को झूले के लिए बुला रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा पद है, कुंभलदास जी का पद है। हो सकता है आपने पहले सुना हो। ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत ही प्यारा हम लोगों ने किया, करने की कोशिश की है। तो ठाकुर जी इस पद में हमारी ठाकुरानी जी, हमारी लाडली श्री राधा रानी को झूला के लिए बुला रहे हैं। ऐसो मान नहीं कीजिए हट छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजिए हट छोड़िए अली। तू तो परम सयानी विष भानु की लली, तू तो परम सयानी विष भानु की लली। फिर आए
जी ने हमारी राधा जी को झूले के लिए बुलाया है, अनुरोध किया है, आग्रह किया है। तो ठाकुरानी जी भी अपनी सखियों सहित ठाकुर जी के साथ यमुना किनारे निधि वन में झूले के लिए आ रही हैं। झूलन आई राधा सखियन साथ, झूलन आई राधा सखियन साथ, झूलन आई राधा सखियन साथ, झूलन आई राधा सखियन साथ। ब्रज के वासी ओ घनश्याम, ब्रज के वासी ओ घनश्याम, झूलन आई राधा सखियन साथ, झूलन आई राधा सखियन साथ, झूलन आई राधा सखियन साथ, झूलन आई रेशम डोरी कदम की डारी, रेशम डोरी कदम की डारी। राधा पहने कुसुमल साड़ी, राधा कुसुमल साड़ी, बिंदा छवि है देखत हर के, शाम को देखत हर के, छोटा देवे श्याम, झूलन आई राधा सखियन साथ, झूलन आई गोपाल लाल चक टिकट टिकट तड़ांग, राधिका मुस्कान आन धात्र धुक टिक तड़ांग, मुरली धर अधर लीन सावरे ने इत कान, राधिका ने नित्य कियो मार के कटाक्ष बाण, मार के कटाक्ष बाण, मार के कटाक्ष बाण। धिन 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 जात जात तट 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 जमुना तट त्रिगम त्रिगम नीर जात कुंज कुंज भटक भट, त्रिग 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 गोपिन को त्रिग 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 ग्वालन को, निरखे हैं जिनके नैन को वरधन धारी को, धन 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 भाग उनके हैं, ता धन 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 भाग उनके हैं।
इस बानवी में तो झूलूंगा तोरे संग, इस बानवी में तो झूलूंगा तोरे संग। तू मेरी राधा हो रे, तू मेरी राधा, तू मेरी राधा हो रे, मैं हूँ कन्हैया, तेरे मुरलिया बाजे, मुरलिया को हम थोड़ा जीवंत करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जयपुर हमारा छोटी काशी है। यहाँ के हमारे आराध्य देव श्री गोविंद वो हमारे बीच में हैं। उनके साथ एक बार होली खेली जाए। हाँ, मुझे पता है ये मौसम नहीं है होली का, लेकिन संगीत के ज़रिए ये होली हम लोग खेलना चाहेंगे। आप लोग इसमें शामिल ज़रूर होइएगा। ये होली है आपके, हमारे और श्री गोविंद के बीच की। हरे रसिया को, हरे रसिया को, हरे रसिया को, हरे रसिया को नार बनाओ री रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओ री रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओ री रसिया को। कटी लहंगा गल माही कंचुकी, कटी लहंगा गल माही कंचुकी, हाँ हाँ बार रसिया, हो रे रसिया, हो बार रसिया, हो रसिया। कटी लहंगा गल माही कंचुकी, कटी लहंगा गल माही कंचुकी, सर पर चुनरी उड़ाओ रीवा को, सर पे चुनरी उड़ाओ री रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। बिंदी बाल नयन बिच खजरा, बिंदी बाल नयन बिच खजरा, हाँ हाँ बार रसिया, ओ रे रसिया, हाँ हाँ बार रसिया, ओ रे रसिया। बिंदी बाल नयन बिच खजरा, बिंदी बाल नयन बिच खजरा, और नथ पे सर पहनाओ रीवा को, नथ पे सर पहनाओ री रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, ओ रसिया
रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रचो है अरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया अरे आज भी रज में होली रे रसिया होली रे रसिया अरे होली रे बड़ी जोली 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 रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया होली रे होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज सब लोग जोर से आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे भाई हमारे पास राधा कृष्ण आते तो हम अपनी जगह से उठ जाते और नाचने लग जाते आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे देखिए हमारे पास अगर राधा कृष्ण आते ना तो मैं तो खुद खड़े होके नाचने लग जाता गाना भी छोड़ देता आपके पास तो राधा कृष्ण खुद आए हैं चलिए आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया अरे हो होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया होली रे बड़ी जोली रे रसिया होली रे बड़ी जोली रे रसिया होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे होली रे रसिया होली रे होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे श्री राधा 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 कृष्णा 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 राधा 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 कृष्णा 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 राधा 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 कृष्णा 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 राधा 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 फूलों में सज रहे हैं अब आप लोगों का साथ चाहिए होगा फूलों में सज रहे हैं आप लोग खड़े रहेंगे तो इनकी झांकी पीछे वालों को नहीं दिखाई देगी अब क्योंकि इतनी सुंदर झांकी हाय
मैं मारी जाऊं, मैं सद के जाऊं। फूलों में सद रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, साथ सज रही है और साथ सज रही है विषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है विषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है इस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, और करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गए हैं। ऐसी छवि देख ले तो क्या बिन मोल ना बिके? हाय, बिन मोल बिक गए राधे, बिन मोल बिक गए जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराए, पैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराए। हमारे छोटे राधा कृष्ण की भी झांकी है और बड़ी सुंदर लग रही है हमारी राधिका रानी। बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराए, पैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराए, पैया गले
अब की बार मैं नहीं गाऊंगा, आप लोग गाएंगे। हाँ, ये लाइन आप लोग गाएंगे और पीछे वाले, सबसे पीछे वाले भी गाएंगे। हाँ, आपसे नाराज हूँ मैं पीछे वाले से। फूलों में सज रहे हैं, आगे सुर में भी गाएंगे। फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे, आगे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, बोले गोविंद गोपाल श्री कृष्ण देव महाराज की जय हो। बस इतनी तालियां। मेरे ख्याल से ये पूरा प्रोग्राम 20-25 मिनट चला। 1 मिनट तक तो तालियां चले तो अच्छा लगेगा। 1 मिनट तो चलनी चाहिए। क्या बात है, इतनी मेहनत। हमारे संगीत विभाग के एक सदस्य का तो गला जो है, मतलब 7 सुरों के अलावा 8 में बजने लग जाता है अभी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी है। 1883 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और उस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान की पैरवी करी और उनको अंतिम समय में बुलाया गया, ये सोचकर कि चलो कोई हिंदुस्तान से एक व्यक्ति आया है, उसको नाराज नहीं करते हैं, उसको भी बुला लेते हैं। ये भारतीय संस्कृति की ताकत है। अगर आप मेरी बात आप तक सही तरीके से पहुंच रही है और आप सही तरीके से समझ रहे हैं तो जरूर स्वामी विवेकानंद के लिए तालियां जरूर बरताइएगा, मेरे लिए नहीं। स्वामी विवेकानंद का जब नंबर आया उस धर्म संसद के अंदर, जिस भी व्यक्ति ने संबोधित वहां उपस्थित जनता को किया तो उन्होंने किया माय डियर चिल्ड्रंस एंड दिस ऑल। तो स्वामी विवेकानंद का नंबर आया तो स्वामी विवेकानंद का प्रथम उद्बोधन था, मेरे बहनों और भाइयों। लगभग 13 मिनट तक उस धर्म संसद में तालियां बजी। उनका एक बार फिर से माहौल बनाने का प्रयास किया गया। हमारे संस्कृति की सबसे पवित्र पुस्तक गीता को सारी पुस्तकों के नीचे रख दिया और स्वामी विवेकानंद को किसी ने कहा कि देखिए आपकी गीता सबसे नीचे है। जवाब सुनिएगा और समझिएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये गीता ही है जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, अगर ये ही नहीं होती तो टिकते कहां से। वो भाव हम यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आज मेरे स्कूल में प्रोग्राम था, सर ने मेरे को 4 बजे बुलाया, उन्होंने मेरे को एक जोरदार टाटा दिया, उसके बाद मैंने कंप्लेन की। ये क्या है? ये कौन सी संस्कृति है? कहां इस देश को लेकर आ गई? हम उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े कलाकार कथक के पंडित बिरजू महाराज से किसी ने प्रश्न किया था कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति या संगीत में फर्क क्या है। पंडित बिरजू महाराज का जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति आनंद देती है, शरीर को आनंद आता है, लेकिन शरीर थक जाता है। और भारतीय संस्कृति मन को आनंद देती है, इसमें आत्मा प्रसन्न हो जाती है। वो भाव हमने आपको यहाँ देने की कोशिश करी है। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। मामा था वो लेकिन जुल्मी था। अरे मामा था वो लेकिन जुल्मी। कृष्ण ने कंस को मारा, ना नफरत
मोहब्बत से न बदले में, न नफरत से न बदले में, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। In today's homes, injustice is often not far. It's in families, traditions and expectations. Krishna's killing of Kans tells us something standing for dharma means rising against your own bloodline. कंस एक व्यक्ति ही नहीं, हाँ, कंस एक व्यक्ति ही नहीं, वो सोच है जो औरतों को दबाती है, बच्चों की आवाज छीनती है और समाज में अपना डर फैलाती है। Krishna teaches us to slay that fear, even if it hides behind the family ties. कभी-कभी सबसे बड़ा युद्ध अपनों से होता है, हाँ, कभी-कभी सबसे बड़ा युद्ध अपनों से होता है, लेकिन अगर उद्देश्य धर्म है तो वो रण भी पुण्य है। स्वागत है तुम्हारा मथुरा में। आखिरकार तुम आ ही गए। ठीक से मिलके तो आए हो ना सब ग्वालों से, क्योंकि अब वापस नहीं जा पाओगे। आना तो था ही मामा कंस, आप बुलाओ और हम ना आए। तुम ग्वाले हो, गाय चराने वाले, परंतु मुझे यहाँ कोई दूध पीता बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। ये शूरवीरों की सभा है, तुम जैसे ग्वालों का क्या ही काम। युद्ध के मैदान में आओ, पता चल जाएगा कौन शूरवीर है। मूर्ख बालक, मुझे ललकारता है। तुझे तो चाणूर चुटकी में मसल देगा। जाओ चाणूर। जो आज्ञा महाराज। जाओ मुश्किल जाओ, अपनी मुश्किल के एक ही प्रहार में मसल दो इन ग्वालों को। जो आज्ञा महाराज। तूने मुझे कायर कहा? तुझे पता नहीं त्रिलोक में अभी तक मैं अपराजित हूँ। व्यर्थ बातें ना करो कंस, आओ मुझसे युद्ध करो। अर्जुन का धनुष कांप रहा था अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध और मोह भ्रम असमर्थता और मोह भ्रम असमर्थता हर योद्धा का एक
क्षण आता है। अरे हर योद्धा का एक क्षण आता है और जब वह टूटता है, और तब कृष्ण बोले, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्वयं धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, स्वयं धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जब निर्णय कठिन हो, अरे जब निर्णय कठिन हो और दिल और दिमाग लड़ रहे हो, तब कृष्ण की गीता भीतर से गूंजती है। तब कृष्ण की गीता भीतर से गूंजती है। ये आज की परीक्षा रिश्ते और जिंदगी की उलझनों का समाधान है। रथ के ऊपर बैठ सकते थे, लेकिन कृष्ण ने रथ चलाया। उन्होंने शंख नहीं बजाया। पहले अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। इट इज नॉट जस्ट ह्यूमिलिटी, इट इज अ लीडरशिप विदाउट ईगो। आज की दुनिया में नेता चमकते हैं मगर राह नहीं दिखाते। कृष्णा's charioteer role tells us, सच्चा नेता कभी आगे नहीं चलता, वो सबको साथ लेकर चलता है। जब जरूरत हो तब मार्गदर्शक बनता है। हमें ऐसे शिक्षक, माता पिता, प्रशासक चाहिए जो शोर से नहीं शांति से राह दिखाएं। कृष्ण सारथी बने ताकि हम अपने जीवन रथ को स्वयं चलाना सीखें। आज की सच्चाई, केवल 23% लोग अपने राजनीतिक नेताओं पर भरोसा करते हैं और 19% स्कूल नेतृत्व पर। जय श्री कृष्ण। हर युग में, हर जीवन में एक क्षण आता है जब भावनाएं दिमाग से टकराती है, जब जिम्मेदारियां भारी लगने लगती हैं और जब हम अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन भी ऐसे ही उलझनों से घिरा हुआ था और तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान दिया, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। हे माधव, ये मेरे अपने हैं, पितामह, गुरु, भाई, सखा। कैसे इन पर बाण चलाऊं? मेरा मन विचलित हो गया है। मैं युद्ध नहीं कर सकता। हे पार्थ, तू इस मोह में क्यों फंस गया है? युद्ध सिर्फ शस्त्रों का नहीं, ये धर्म का संघर्ष है। तेरा अधिकार केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत कर पार्थ। किंतु यह धर्म का स्वरूप कैसा है जब उसमें अपने ही लोग सामने खड़े हों? स्वधर्म से बढ़कर कुछ नहीं। यदि तू पीछे हटेगा तो इतिहास तुझे कायर कहेगा। इतनी उम्मीदें, इतना बोझ। पापा चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं। माँ को डर है कि मैं पिछड़ ना जाऊं। दोस्त मजाक उड़ाते हैं। टीचर कहते हैं मैं ध्यान ही नहीं देता। क्या मैं भी एक असफलता हूं? हे वत्स, मोह मत कर। ज्ञान और कर्म में संतुलन ही योग है। क्या आज भी कोई कृष्ण है जो मुझे समझाएगा? हर अर्जुन के लिए कृष्ण होता है। तेरे भीतर, तेरे विवेक, तेरे आत्मबल, तेरे निर्णयों में। मैं टूटा था युद्ध से पहले और तू टूटा है परीक्षा से पहले।
किंतु टूटने से ही पुनः जुड़ने की शक्ति आती है। पर कैसे उठूं जब भीतर ही विश्वास नहीं बचा? विश्वास भीतर से ही उपजता है। गीता कोई ग्रंथ नहीं, यह तो तुम्हारा स्वयं से संवाद है। जब दिल और दिमाग लड़े तब गीता गूंजती है। जब जीवन उलझे गीता को सुनो। और जब मोह छाए विवेक से लड़ो। मैं अर्जुन हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कर्म करूंगा, दृढ़ता से, श्रद्धा से और प्रेम से। समय है जो माँ यशोदा कॉन्टेस्ट के विनर्स हैं उनके और जिन जिन प्रतिभागियों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे उनको स्टेज पर बुलाने का। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैडम सेक्रेटरी टू बी ऑन द स्टेज टू अवार्ड देम विद द प्राइजेस। I would also request Madam Director to be here. So, जो सेकंड राउंड हमारा जो कंपटीशन था यशोदा कृष्णा कॉन्टेस्ट, इसमें बैच नंबर 34 मैडम वीना शर्मा, द मदर ऑफ जैष्णवी शर्मा, has bagged the third place in it. Congratulations, madam. If she is there, can I request her to be on the stage, please? मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट सेकंड 3 पोजीशंस पर थे, वो माताएं भी यहाँ पर आ जाएं स्टेज पर. इट विल बी देयर फैसिलिटेशन एज वेल. सेकंड राउंड के अंदर मदर श्रेया ऑफ अविक, having batch number 43, has bagged the second prize in this category. Can I please appreciate and can I please invite Madam Shreya on the stage? मैडम श्रेया अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं, वरना खोया पाया की घोषणा कुछ समय पश्चात कर दी जाएगी. इसके अतिरिक्त सेकेंड राउंड में who been found as the top in their attires and complimenting in Yashoda and Krishna costume, mothers Sapna Rohila of Ridvit. Can I please give a big round of applause for the madam Sapna Rohila, mother of Ridvit. A bit confusion here whether it is 13 number pairs or it is 8 number pairs, I don't know. Badge number B. Badge number B. Category. She was not having any badge number. Badge number B. If she's there, can I please request her to be on the stage? And I would also request the winners of the first round as well to be here. Now can I we got the 3 parents who correctly answer certain questions which we have picked up here. Can I request those all 3 parents to be on the stage as well? यहाँ से उनके नाम है श्री हरीश जी शर्मा. अगर हरीश जी शर्मा अभी भी हैं, आइए हरीश जी, आपका स्वागत है. शायद पिछले जन्माष्टमी कार्यक्रमों में भी आपने काफी प्रश्नों के उत्तर दिए थे. क्या बात है, अनन्य भाव से आप कृष्ण की भक्ति में हैं. बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए. जो दूसरे पेरेंट्स जिन्होंने इस कुछ प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे उनमें से मैडम शीलावती, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, मैडम शीलावती यहाँ पर हैं. तो मैडम शीला, तो इतनी अच्छा प्रोग्राम जो हुआ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी बहुत बिजी लाइफ्स होती हैं
और उस बिजी लाइफ में हम एक सुकून का पल ढूंढते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आज था वो एक सुकून का पल था या नहीं था? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? थक गए आप लोग? तो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है एंड उनमें से कुछ कई मैं नाम ले पाऊंगी, बाकी पूरी हमारी टीम है। तो सबसे पहला थैंक्स जो है वो हमारी म्यूजिक टीम को है, कौशिक सर, प्रकाश सर और तरुण सर। You have worked wonderfully to bring it out and उसके बाद में जो थैंक्स है वो आप लोगों को है कि आप इतनी वंडरफुल ऑडियंस रहे और पूरे प्रोग्राम में आप लोगों ने साथ दिया। थैंक यू सो मच। उसके बाद में हमारे स्टूडेंट्स who have worked very hard tirelessly despite the weather conditions which were there in the morning and they have worked very hard to bring it out to you all। and उसके बाद में लास्ट थैंक्स जो है वो हमारी पूरी VSI टीम को है जिन्होंने डे एंड नाइट मेहनत की है इस प्रोग्राम को आपके पास लाने के लिए। हमारा आर्ट डिपार्टमेंट जिसकी आप सारी चीज़ें देखेंगे जो पूरा लगा हुआ है, आप झांकी देखेंगे या फिर यहाँ पे आप स्टेज देखेंगे तो वो पूरा हमारे आर्ट डिपार्टमेंट ने डेकोरेट किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप बहुत तालियां बजा दें अच्छी वाली हमारी पूरी VSI टीम के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। Thank you, VSI team in the sense volunteers and everybody who's been part of it. अब हम सब लोग आरती के लिए पूरे मन से कान्हा जी की आरती में हम सम्मिलित होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों की और उसी भावना, उसी प्रेम, उसी उत्साह, उसी श्रद्धा से प्रस्थान करेंगे। और इसमें पूरी तरह से सम्मिलित हुई आप लोग। मैं आई वुड रिक्वेस्ट द म्यूजिक डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द आरती। कैन आई रिक्वेस्ट मैडम चेयरमैन सर एंड सेक्रेटरी मैम टू स्टार्ट विद आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। प्रेम से बोलिए, बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो, बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। चलिए, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की,